નમસ્કાર, હું છું કેતલ અને આપ જોઈ રહ્યા છો CB24। દિલ્હીની 70 બેઠકો માટે એક જ તબક્કામાં મતદાન થશે, જેમાં 5મી ફેબ્રુઆરીએ મતદાન થશે અને 8મી ફેબ્રુઆરીએ મતગણતરીનું રિઝલ્ટ આવશે। દિલ્હીમાં વિધાનસભાની ચૂંટણીને લઈ અને ઇલેક્શન કમિશન દ્વારા પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજવામાં આવી હતી। તો રાજીવ કુમારે જણાવ્યું હતું કે 2024 ચૂંટણીનું વર્ષ રહ્યું છે। દેશમાં 99 કરોડથી વધારે મતદારો છે। દુનિયાની 2/3 વસ્તીએ 2024માં મતદાન કર્યું છે। આ સાથે જ તેમણે યુવાનોને લોકતંત્રમાં ભાગીદારી વધારવાની અપીલ કરી છે। તો દિલ્હીમાં વિધાનસભાની ચૂંટણીની જાહેરાત કરતા જણાવ્યું કે 70 બેઠકો ઉપર એક જ તબક્કાનું મતદાન થશે। 5મી ફેબ્રુઆરીએ મતદાન થશે અને 8મી ફેબ્રુઆરીએ રિઝલ્ટ જાહેર થશે। આ સાથે જ ચૂંટણી પંચે ટકોર કરી છે કે ચૂંટણી પ્રચારમાં ખરાબ ભાષાનો પ્રયોગ ન કરો, ખાસ કરી અને મહિલાઓ માટે। સાથે જણાવ્યું છે કે સૌથી વધારે મતદારો મામલે આપણે બહુ જલ્દી નવો રેકોર્ડ બનાવીશું। 100 કરોડ મતદારો વાળો આપણો દેશ બહુ જલ્દી બની જશે। દિલ્હીમાં ખાસ કરીને ઉત્સાહ સાથે વોટિંગ થતું હોય છે। તેમણે જણાવ્યું કે વોટિંગ લિસ્ટમાંથી નામ હટાવવાની ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવી હતી। ઈવીએમમાં ગડબડીના આરોપ લાગ્યા। આમ ચૂંટણી પંચ સામે અનેક સવાલો ઉઠાવવામાં આવ્યા હતા। તો ધીમી મતગણતરીને આરોપ પણ લગાવવામાં આવ્યો હતો, જેનો જવાબ આપતા જણાવ્યું કે આરોપો સાંભળીને દુઃખ થાય છે। પારદર્શિતા અમારી પ્રાથમિકતા છે। ચૂંટણીના 7 દિવસ પહેલા ઈવીએમમાં સિમ્બોલ નાખવામાં આવે છે। પક્ષોની સામે જ ઈવીએમનું સીલ તોડવામાં આવે છે। ઈવીએમ સ્ટ્રોંગ રૂમની દેખરેખ હેઠળ હોય છે। તો 7-8 દિવસ પહેલા જ ઈવીએમમાં બેટરી નાખવામાં આવે છે। ફોર્મ 6 વિના તો મતદાર યાદી તૈયાર થતી નથી। તો 70 પ્રકારના પગલાં ભરી અને ચૂંટણી પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરવામાં આવે છે। દરેક પક્ષોને કોઈ મુશ્કેલી હોય તો તેની ફરિયાદ કરવાનો પણ સમય આપવામાં આવે છે। કોર્ટે કહ્યું કે ઈવીએમ હેક ન થઈ શકે, ઈવીએમમાં વાયરસ કે બગ ન આવી શકે, ઈવીએમમાં ગેરકાયદેસર વોટિંગની સંભાવના જ નથી। ઈવીએમ ફૂલ પ્રૂફ ડિવાઇસ છે। Money power, of course, we will be tackling for any inducement free elections। सबकी बराबर चेकिंग होगी। हम चेकिंग में कोई भेदभाव नहीं करते। अभी पीछे के इलेक्शन में एक बड़ा भारी हल्ला हो गया कि हमारा हेलीकॉप्टर चेक कर दिया, उसका नहीं कर रहे, इसका नहीं कर रहे। गंदी गंदी भाषा का भी इस्तेमाल किया गया। हम अपने आप को रोक के रखते हैं। हम लेट मी से इट लाइक दिस, पोलिंग ऑफिसर्स को धमकाने की स्टेज तक लोग चले जाते हैं बोलने में, लेकिन हम रोक लेते हैं अपने आप को, इसलिए कि उससे लेवल प्लेइंग फील्ड डिस्टर्ब होती है। ये जो स्टार कैंपेनर्स हैं और जो पॉलिटिकल कैंपेन में जुड़े हुए हैं, उनकी ड्यूटी बनती है कि शिष्टाचार और सभ्यता का ध्यान रखें। कोई विमेन के बारे में कुछ बोल देता है, वी विल बी वेरी वेरी हार्श। अगर किसी ने भी, दिस इज अवर वार्निंग टू दी, मतलब इतना आवेश में ना आए कि महिलाओं के खिलाफ कोई गलत निकल जाए, शायद बच्चों को इस्तेमाल कर लें। विल बी रियली हार्श ऑन देम। दिस इज आवर रिक्वेस्ट विथ फोल्डेड हैंड्स दैट कैंपेन का स्तर ऐसे ना गिराएं जो नॉर्मल वोटर थोड़ा डिस्करेज हो जाए। लेट्स कीप दैट शालीनता इन माइंड। विल बी वेरी वेरी स्ट्रिक्ट विद दिस। वी हैव सेट अप अवर टीम्स एंड डायरेक्टेड एवरीवन टू kind of be checking the inducement. I am coming to a little serious serious issues, and I'll take some time before I come to the daily specific issues. 24 में जहां मैंने इतनी सारी उपलब्धियां गिनाई, वहीं चुनाव के दौरान कुछ डाउट्स, कुछ शंकाएं, कुछ कंसर्न्स भी रेज होते रहे। So prior to coming to Delhi elections, let me on my own tell you what kind of concerns were raised, and I'll narrate all these concerns, and also before coming to Delhi try and answer on each one of them so that no doubts remain. कहा गया कि इलेक्टोरल रोल्स में रॉन्गफुल एडिशन या डिलीशन कर दिए गए। ये अभी रिसेंट शुरू हुआ जनरल इलेक्शन के बाद, महाराष्ट्र इलेक्शन से। अभी दिल्ली में भी चल रहा है लगातार यही बात। तो आप पूछेंगे, इससे पहले मैं खुद वो प्रश्न दे रहा हूं जो आपके मानस में हैं और सबके मानस में फैला दिए गए हैं। ऐसा भी कहा गया है कि कोई ग्रुप्स को टारगेट कर दिया जाता है, किसी के नाम काट दिए जाते हैं, किसी लोकेलिटी से नाम काट दिए जाते हैं। मैं आज सब बताऊंगा कि ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा क्यों नहीं हो सकता। कहा कि
कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में 50-50 हज़ार वोटर बढ़ा दिए गए, वहां पर कोई पर्टिकुलर पार्टी जीत गई, इस तरीके की चीजें कही गई। ईवीएम्स का तो एक सब जवाब देने के बाद बोला गया कि मैनिपुलेट हो सकती हैं। ये भी 2 बार हो सकता है, कभी बैटरी के नाम पर, कभी किसी नाम पर, कभी कहा गया कि ये ईवीएम इलेक्शन है, लोगों का इलेक्शन नहीं है। फेयरनेस ऑफ द इंडियन इलेक्शंस आर द वोटर, इंडियन वोटर इज एक्सट्रीमली अवेयर, कॉन्शियस, ही अंडरस्टैंड्स एवरीथिंग, तो वही जवाब देता है। बट एनीवे, जो प्रश्न पूछे गए उनका जवाब मुझे देना चाहिए, मैं देता हूं उनका जवाब आपको। एक जवाब देने से पहले अगर ये बात मैं कहूं कि ये पूरी पिक्चर अगर किसी को दिखा दो, तो सारी पार्टीज को पता है कि वो जहां उनको वो भी हर जगह में जीते हैं। हर इलेक्शन के बाद एक परिणाम से रिलेटेड, परिणाम के बेसिस पे प्रक्रिया का आकलन नहीं हो सकता। परिणाम अपना निश्चिंत है। फिर से जो पार्टी सब जानती हैं कि वो भी जीतती हैं, अगर उसको भी शायराना अंदाज में कहा जाता तो कैसे कहते, ये मैं कहने की कोशिश फिर से करता हूं। वो जानते हैं वो जीत चुके हैं, उन्हें पता है। कर न सकें इकरार तो कोई बात नहीं, मेरी वफा का उनको एतबार तो है। शिकायत भले ही उनकी मजबूरी हो, मगर सुनना, सहना, सुलझाना हमारी आदत तो है। फ्रेंड्स, विद दिस आई विल कम टू द इलेक्टरल रोल। अभी भी इलेक्टरल रोल के बारे में कहानी चल रही है। देखिए, आपको एक करीब 70 स्टेप्स ऐसे हैं। इलेक्टरल रोल, उसके बाद चुनावी प्रक्रिया, ईवीएम्स, पोलिंग स्टेशन, फॉर्म 17C, काउंटिंग, जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स कॉन्टिन्यूअसली हमारे साथ रहते हैं। डिस्क्लोजर्स की जो मैं बात कहता हूं, वो आज मैं आपको दिखा रहा हूं कैसे। अगर जब भी इलेक्टरल रोल बनता है, रेगुलर मीटिंग्स होती हैं, फॉर्म 6 के बिना हो नहीं सकता। बीएलए हर पार्टी को अपॉइंट करने का अधिकार है। जो भी क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस आते हैं, वो हाथ की हाथ हर पॉलिटिकल पार्टी के साथ में शेयर किए जाते हैं। वेबसाइट पे ड्राफ्ट डाला जाता है। पोलिंग स्टेशन के रेशनलाइजेशन में कंसल्ट किया जाता है। कोई डिलीशन हो ही नहीं सकता जब तक उसके पीछे फॉर्म 7 ना हो। यहां तक कि अगर किसी की डेथ हो गई है, उसका भी डेथ सर्टिफिकेट हम अपने रिकॉर्ड में लगा के बीएलओ के माध्यम से रखते हैं। अगर किसी का डिलीशन इसके अतिरिक्त होना है शिफ्टिंग में,